In this conversation, I'm having with me talking about the strategy Mr. Anshuman Rajhans, who is himself a selected candidate. So before we start the conversation, why not, Mr. Anshuman, you tell a little about yourself and your journey? Hello, my name is Ansuman, and I passed out of IT Delhi in engineering physics. And in civil services examination 2018, I got All India rank 356 and got Indian Railway Traffic Service. And in the same year, in the Indian Forest Service examination, I got All India rank 11th, and finally decided to join IFS service. And in Indian Forest Services, my optionals were physics and forestry, and in civil services, it was physics. So that's so impressive, Anshuman, and I'm sure a lot of viewers of this show and a lot of viewers of this channel will find it very inspiring. And actually, not only this conversation, but I plan to have a series of conversation with you, so that from your insight, from your experience, a lot of other aspirants can gain in terms of a strategy and in terms of how should they plan about the examination. So in this conversation, Anshuman, we are going to focus upon what the students should be doing between now and the prelim examination, because under these extraordinary circumstances जो हम देख रहे हैं, so prelim examination has been delayed quite a bit, and now the UPSC has already announced that prelim 2020 will be taking place on 4th of October. But on the other hand, the space between prelim and main has shrunk, and the entire calendar is unlike anything that I have seen ever before. So it is a very different calendar that we are going to face. तो ये नेचुरल है कि बहुत सारे स्टूडेंट भी इस तरह के कैलेंडर के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अ लिटिल क्लूलेस कि अब हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, हमारा प्रिपरेशन कैलेंडर व्हाट शुड इट लुक लाइक. सो मेरा सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन होगा अंशुमान, वो यही है कि इस साल जब अभी से प्रीलिम को 3 महीने का समय है, सो हाउ शुड अ कैंडिडेट यूटिलाइज दिस टाइम फ्रॉम नाउ टिल द प्रीलिम? The main problem is that the space between prelims and mains is only 3 months, which is generally 4 to 4.5 months. And even there is a lot of time. And even if we think of prelims preparation, then 2 months is more than enough if we focus on prelim focused preparation. So definitely, even now we have 3 months. So I would say कि इस 3 मंथ का यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि डेफिनेटली प्रीलिम्स पे तो फोकस करना ही है, लेकिन 3 महीने अगर आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक लिमिट ऐसी होती है कि देयर इज सम सैचुरेशन लिमिट, कि इवन इफ यू प्रिपेयर बियॉन्ड दैट देन नथिंग इज एज सच. इनपुट आउटपुट रेशियो विल बी वेरी मींस देयर विल बी लॉट ऑफ इनपुट बट आउटपुट विल नॉट बी सच. So definitely मैं ऐसा कहूंगा कि in these 3 months focus should be around 1.5 months for prelims, and the remaining till 15th of August one should focus more on mains. जैसे अभी today is 3rd of July, so from this time up to let's say 15th of August, it can vary from person to person to 5 to 10 days, definitely on his scope and the length of preparation. But this time the focus should be on the mains preparation, and side by side 2 to 3 hours can be focused for prelims preparation. But once the time reaches up to 15th of August, after then the candidate can think of going for prelim focused preparation. And so this will be helpful, because the problem is that even one clears prelims, even IFS prelims, but the time gap is so such small. That time gap cannot be utilized for mains preparation if one focuses solely on prelims these 3 months. Yeah. So that's a very nice point that you have made, Anshuman. My second question is related to it. A lot of first timers are not very sure about whether their preparation for the prelim is enough or they need to put in more work. Especially, they are always concerned that they are having intense competition from such candidates who are writing this examination for the second or third attempt. So naturally, these candidates will have an edge. They have accumulated more facts. Besides, they have an advantage of having been through this examination. So for the first attempters, should the same strategy apply, or do you suggest some other strategy?
Definitely, strategy will be same even for the first attempters, but definitely there will be difference. I agree to the fact that कि जो थर्ड अटेम्प्टर हो या फोर्थ अटेम्प्टर हो तो उनकी नॉलेज लेवल नॉलेज बेस थोड़ी ज़्यादा तो होंगी, नो वन कैन डिनाई दैट। बट डेफिनेटली ऐसा होता है कि अगर कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज का कट ऑफ 100 के आसपास जाएगा लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, एंड फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज इट विल बी अबाउट 115 और 116। तो अगर 116 प्लस अगर आ रहे हैं कि इफ वन इज ऑफ द लेवल की ही श्योर दैट ही कैन गेट 120 अराउंड, देन डेफिनेटली उसके बाद उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर कोई सीरियस फर्स्ट अटेम्प्टर है एंड ही हैज फोकस्ड 2 मंथ्स डेडिकेटेड फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो वो लेवल अचीव किया जा सकता है बशर्ते राइट डायरेक्शन में अगर इनपुट दिया जा रहा है। तो अगर 3 महीने का यूटिलाइजेशन ऐसा हो रहा है कि इवन द गाय इज फर्स्ट अटेम्प्टर, तो वो 3 महीने का यूटिलाइजेशन में वो यील्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो काम 2 महीने में किया जा सकता है। तो हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर है अगर वो प्रीलिम्स से लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, देन ही और सी कैन गिव मोर टाइम फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि ऐसा अगर कोई सेकंड या थर्ड अटेम्प्टर है सो ही विल बी थिंकिंग कि अच्छा 15 अगस्त तक मेंस की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस हो और 2 से 3 घंटा ही कैन थिंक ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, एंड आफ्टर 15 अगस्त वो तो प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन ही करना होगा। लेकिन इफ वन इज नॉट श्योर कि प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, इवन आईएफएस का प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जुलाई भर वो प्रीलिम्स को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, मींस फोकस प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वो आईएफएस के लिए कर रहे हैं तो ऑप्शनल की रीडिंग हो गई, या फिर अगर वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस मेंस या फिर ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हैं। और फिर जब 2 महीने बच रहे होंगे अगस्त और सितंबर, तो वो दोनों महीना वो यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मेरा मेन एजेंडा ये कहने का है कि अभी इस टाइम को मेंस प्रिपरेशन के लिए यूज करना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कंफर्ट कि अगर ऐसा लगता है कि उतने वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो हाँ वो थोड़ा जल्दी प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अंशुमन, आपने आईएफएस के प्रीलिम की बात की एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि सीट्स कम होने की वजह से आईएफएस प्रीलिम को क्लियर करने के लिए वन नीड्स टू स्कोर हायर. So, what extra percentage of a score or what extra marks that one needs to secure in order to very positively qualify for the IFS, जहाँ पे डाउट का कोई रूम ना हो, तो वो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स की ज़रूरत होती है? अगर लास्ट ईयर मैं अगर ट्रेंड की बात करूं, क्योंकि वो डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, जो डिफरेंस होता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में और आईएफएस के प्रीलिम्स में कि कट ऑफ में, वो 15 टू 20 मार्क्स के बीच में डिफरेंस रहता है। अब कट ऑफ कितना जाएगा, इवन अगर मैं 2017 एंड 18 द कट ऑफ वाज अराउंड 100 मार्क्स। 17 में तो 17 में भी 17 में थोड़ा ज्यादा था, 18 में 100 मार्क्स के आसपास था, 98 टू बी प्रिसाइज। और 2019 का तो भी आएगा, लेकिन दैट विल बी अराउंड 100 मार्क्स। लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज का जस्ट वो 15 प्लस होगा, रफली 115 116 के आसपास। तो अगर डिफरेंस इज अराउंड लेट्स से 16 मार्क्स, दैट मीन्स कि 8 मोर क्वेश्चंस नीड्स टू बी करेक्ट। लेकिन अब श्योर शॉट होना है तो डेफिनेटली वन कैन नॉट थिंक कि मेरे को 116 मार्क्स ही लाने हैं। तो आई विल से कि अगर 2019 जैसा अगर टफ पेपर भी आता है, इफ वन इज वेरी मच श्योर दैट ही वुड बी एबल टू स्कोर अराउंड 125 टू 130 मार्क्स, देन दैट विल बी अ सेफ बेट। तो 130 मार्क्स स्कोर करने के लिए डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट होने चाहिए वो 75 के आसपास होने चाहिए, डिपेंडिंग कि 73 टू 77 के रेंज में होनी चाहिए। अब आईएफएस कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो अब करनी होंगी आईएफएस के लिए, तो डेफिनेटली मेरा एटीट्यूड ये रहता था कि मैं कट ऑफ के बारे में एंड में नहीं सोचता था। माय फोकस वाज कि आई शुड गेट द मैक्सिमम मार्क्स एज पॉसिबल, वो चाहे वो 150 हो चाहे वो लेट्स से कम भी हो। मैं मेरा माय होल इंटेंशन वाज टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल, हाउ मच मैक्सिमम आई कैन स्कोर। आई यूज्ड टू अलाइन स्ट्रेटजी इन दैट मैनर। तो अब आईएफएस का अगर कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो अब मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि मैं 100 में 100 अटेम्प्ट करता था, बट आई विल नॉट से कि दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इट कैन वर्क फॉर सम ऑफ द पीपल, बट डेफिनेटली मैक्सिमम को ऐसा लगेगा कि 100 में 100 इससे बेट नहीं होगा। बट डेफिनेटली आई वुड से कि ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन ओनली वन कैन इंश्योर कि जो आईएफएस का कट ऑफ है वो क्लियर हो सकता है। और उसके अलावा कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा करनी होगी, तो अब नॉलेज लेवल पे मैं पर्सनली जो फेस किया था, अगर 2017, 18 और 19 के प्रीलिम्स के अगर मैं एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, तो 17 वाज द प्रीलिम्स वाज ऑफ not that much tough. 18 and 19 was a tedious paper. Difficulty of the questions were very high. So my personal experience is that even
after having so much of knowledge, even if you are third or fourth attempter, you will be getting around 40 to 50 questions correct based on your knowledge level. And after that, even you would be knowing something, but definitely you would not be knowing 100%. So some kind of guesswork, some kind of logical ability that needs to be cultivated along with the prelims preparation, along with the revision. Right, right. And another challenge that IFS candidates mostly face is that they have to handle two optionals. And the candidates who are writing the civil service as well as IFS in 2020, they might want to know when they are having this 3 months time, and you suggested that the time until 15th of August should be given to mains preparation also. So when someone has to deal with two optional subjects, so what should be the strategy? So the strategy will differ from person to person. There will be two type of persons. One person having the common optional. For example, Hmm. one can be having maths or physics as optional for civil services, and that will be also optional number one for Indian Forest Services. And one need to prepare just another optional for the Indian Forest Service. And there will be also some students who will be having two set of new optional exclusively for the Indian Forest Service. So definitely strategy will differ on that. So if one has one optional common, then definitely it becomes easier to crack Indian Forest Service examination. Because let's say, for example, one is having mathematics. So definitely he would be focusing on mathematics. He will be preparing for civil services. He will be good at it. And that will be also beneficial for Indian Forest Services. So only you need to think about the second optional, which maximum of the chances the second optional will be forestry. And for some it can be two new optional. So if both the optionals are new, I will suggest that one should have a first reading, basic reading of both the optionals. And the basic reading can be completed in 15 days. So 15 days for forestry and 15 days for the other optional which one would be having. And if one optional is common, then definitely you would be preparing for civil services. That particular optional will be prepared by default for the Indian Forest Services also. Just he would be needing to have a reading of, let's say if he is having forestry as the second optional, so a basic reading of forestry should be completed before the prelims. So that कि जब second reading हो, then he would be in a position to better judge what would be the most optimum strategy, what would be the most optimum time management after the civil services mains gets over. All right. So when we talk of IFS examination, you have just now shared that how should one be balancing the two optional. In this light, I wanted to know, like, what will be the realistic amount of mains syllabus that one should expect to cover by 15th of August? Should one reading be done, or a little more than that should be done? So what will be your suggestion? Given the huge amount of time that is at hand, roughly from now, 4th of October, so today is 3rd of July, so roughly 3 months, 90 days. So even if I would be in that position, so I would think of giving 45 days exclusively for mains, and after 15th of August for the prelim focus preparation. So even if one thinks to crack in this attempt only, I would say that before the prelims, one basic reading of GS mains and optional should be completed, and if possible, self-made notes should be made just before the prelims only, because that time is such that only 3 months is there. So 1 month will be there for revision and giving a test or answer writing for GS. 1 month similarly for optional, and one month last month for final revision, and then after giving the mains. So definitely one would not be having that much time to make notes at that time after the prelims. So I would say have a basic reading first of both the GS mains and optional, and also try to ensure that for maximum of the syllabus, self-made notes should be made before 15th of August to the extent possible. Even some portion can be left that can be done after prelims, but definitely one should try to ensure the target should be that before 15th of August, the notes for self-made notes for GS 1, 2, 3, 4 and optional should be completed to the extent possible. All right. So when you talk of self-made notes, so do you mean summary notes from standard sources which are available either from the coaching institutes or some of the very popular books? So you advise that the candidate should be making summary notes
for their ready revision between the prelim and mains. Is this what you meant, or is there some other technique that you would want to suggest for making notes for the main examination? Regarding notes, definitely, sir, am stressing on that fact only. That first one would be having a standard book reading, and maybe one can also be referring to various coaching notes also if that is optimum. And after then, it is not possible to read again and again from that book only. So first reading should be there, and in the first reading, one should not be making notes because everything will seem important. After having the first reading of both GS mains or optional, then after in the second reading one should be making notes out of that standard book or maybe from the coaching notes, so that कि एक बार notes बन गया, after then वो बुक वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़े. एट द लास्ट रिजॉर्ट देखना पड़ जाता है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट डेफिनेटली द फोकस शुड बी सच कि अगर GS1 के अगर 100 पेजेस के नोट्स बन गए तो बुक वापस से रेफर नहीं करना होगा, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा कि सारी चीजें फिर फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, जो मेंस के लिए काफी यूजफुल होता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि जो चीजें फिंगर टिप्स पे नहीं है, इवन वन इज नोइंग देन वन वुड नॉट बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज वो चीजें फिंगर टिप्स पे नहीं है. तो फिंगर टिप्स पे आने के लिए वो सेल्फ मेड नोट्स से ही आ जाती है कि एक बार लिखता है कोई भी तो वो मेमोरी में ज्यादा अच्छे से वो फीड हो जाता है आफ्टर मेकिंग ओन नोट्स. That's very nice, actually. And I'm sure a lot of first timers who are not actually having experience of making notes for their mains examination, they will find this tip especially very, very helpful. Now, I would like to come back to the theme of prelim examination. So, for the benefit of someone who has not yet cleared the prelim, so that person can be a first timer, or that person can be a second timer or third timer, but unfortunately, he or she has not cleared the prelim yet. So, for the benefit of such candidates, what will be, in your opinion, the most important themes, the most important areas to be covered in the prelim, so that a candidate can focus some attention, extra attention on those areas and hope to score better in the prelim examination? For prelims, my personal feeling is that there are two important pillars. After, let's say, 15th of August is over, so two main pillars will be there. One is the revision of the basic books, basic areas like history, geography, polity, economy, environment, and ecology. And the second is practicing mock test. एंड रिगार्डिंग रिवीजन डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट. कुछ एरियाज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सवाल आ जाता है, या कुछ एरियाज कुछ ऐसे फैक्चुअल होते हैं अगर वो रिवीजन ना करें, इवन फॉर एग्जांपल पॉलिटी में वेरियस आर्टिकल्स हैं तो लास्ट टाइम वो रिवीजन नहीं हो तो एक कंफ्यूजन होता है कि ये था या ये था, तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए रिवीजन तो डेफिनेटली दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो एक पहला जो पिलर है वो रिवीजन ही है. एंड सेकंड इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. अब मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसे मैंने कहा कि 40 to 50 क्वेश्चंस एट मैक्स वन वुड बी नोइंग विद 100% कॉन्फिडेंस. आफ्टर देन कुछ चीजें पता होंगी, एक आइडिया होगा, वेग आइडिया होगा, लेकिन वन हैज टू सॉर्ट इट आउट कि इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर ये हो सकता है. तो उसके लिए ऑन द एग्जामिनेशन रूम में ही फिर आंसर निकालना होगा. और वहां पे प्रीलिम्स में प्रेशर इतना होता है कि इफ वन इज नॉट कॉन्फिडेंट देन वन वुड नॉट बी एबल टू मार्क इट इन द OMR सीट. So for gaining that particular confidence, it is very much necessary that one has cultivated that practice in a examination like manner. And for that, practicing mock test is very much important. तो कुछ स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स हुई, या फिर आधा पता है आधा नॉलेज है. डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि वो 40-50 सवाल भी बिल्कुल नहीं पता होगा, एक आइडिया होगा लेकिन 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पता होगा. तो उस केस में अगर वो प्रैक्टिस काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली वन इज हैविंग सच कॉन्फिडेंस कि अगर थोड़ा सा एक वेग आइडिया भी है तो भी वो आंसर मार्क कर सकता है और वो सही हो सकता है. सो फॉर मॉक टेस्ट उस एंगल से, क्योंकि कॉन्फिडेंस का काफी रोल होता है प्रीलिम्स में भी. और तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, रफली 30 to 40 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, और साथ में रिवीजन की एक अच्छी स्ट्रेटेजी मेंटेन करना, ये दो मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं प्रीलिम्स के लिए. और सिलेबस में कुछ ऐसा एरिया विच यू वुड रेट एज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स? कुछ कॉमन एरियाज तो डेफिनेटली है जिसमें प्रीलिम्स में सवाल आते ही हैं. जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, एवरी ईयर बुद्धिज्म पे एक सवाल होगा, जैनिज्म पे एक सवाल होगा, भक्ति मूवमेंट पे एक सवाल होगा, जो हर साल होता है. एक सवाल इंडस वैली सिविलाइजेशन या आर्यन एज पे होगा. तो ये 4 सवाल लगभग होता है. ये 4 में तो 3 आ ही जाएगा. अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो एक इंडियन रिवर सिस्टम पे एक सवाल आता ही आता है, और कुछ मैप वर्क पे सवाल की कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं. तो एक डायरेक्टली नहीं पूछेंगे लेकिन कुछ एरियाज को लिंक कर देंगे कि उसमें अगर माउंटेन्स की नॉलेज अगर क्लियर है, अगर मैप वर्क एटलस का वर्क अगर क्लियर है तो डेफिनेटली वन कैन इजीली आंसर.
पॉलिटी में डेफिनेटली पॉलिटी का ऐसा रोल है कि 15 to 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल होते हैं, और इफ वन हैज रेड पॉलिटी थॉरोली देन 100% ऑफ द क्वेश्चन कैन इजीली बी सॉल्व। तो वहां पे रिवीजन का काफी रोल हुआ। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ कॉमन एरियाज जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्कीम्स पे 5 से 6 सवाल तो मिनिमम हर साल होते हैं। तो इफ वन हैज प्रिपेयर्ड थॉरोली तो वो 6 सवाल में से 4 या 5 सवाल तो विद कंफर्मिटी वन कैन इजिली मार्क। एक दो मान सकता हूँ कि वो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। और फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो 2-3 सवाल तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज से रिलेटेड होते ही हैं। अब और उसके अलावा जैसे ये सब एरियाज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे टाइगर रिजर्व्स हुए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हुए, नेशनल पार्क्स हुए, रामसर साइट्स हुए, तो इनको ज्योग्राफी के साथ लिंक करके कि इनमें से कौन सी रिवर पास होती है, कौन से माउंटेन्स वहां पे हैं, वहां से कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, ये सवाल 2 से 3 सवाल तो हर साल ही होता है। और उसके अलावा अगर कुछ और भी एरियाज हैं जैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, तो ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो 1 या 2 सवाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से पैरामीटर्स नहीं कंसिडर किए जाते, तो वो भी एक इजी सवाल था इफ वन हैज रेड अबाउट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। तो ऐसे 15 से 16 एरियाज होते ही होते हैं जिसपे यूपीएससी हर साल सवाल पूछती है। तो वो 16 एरिया में चौक द एरिया तो हर साल यूपीएससी टच करेगी। तो वो एरिया बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए। अगर वो एरिया वीक नहीं है तो 15 से 16 सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे अगर वो एरियाज पे अगर स्टूडेंट स्पेशल फोकस देता है तो। राइट। और एक एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, बट बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ आई वुड से ओपिनियन ऑन दिस, so as someone who has himself gone through the journey and cleared the examination and both the examination actually, so a candidate, how many hours should he plan to study? अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। और एक मैं जैसे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो कुछ एक बेसिक आइडिया लेके चला था कि 10 घंटे के आसपास पढ़ना है। वो थोड़ा वेरी भी करते रहता है। किसी दिन होता है कि अगर सिलेबस जो सोचा है जिस दिन जितना करना है वो इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड देन आई वुड गो बियॉन्ड इवन 10 आवर्स टू मींस 11 or 12 आवर्स। सम डे डेफिनेटली इट इज नॉट सो मच पॉसिबल, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ या फिर तो वो थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे के आसपास तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। और स्पेशली जब ये टाइम आ चुका है जिस समय एग्जामिनेशन इज वेरी मच नियर और इवन देयर इज एक्स्ट्रा टाइम, सो डेफिनेटली जो टफ कॉम्पिटिटर्स होंगे तो ही और सी वुड बी यूटिलाइजिंग दिस टाइम इन एन इफेक्टिव मैनर। तो जिनको अगर जो सीरियस है तो उनको भी इतना टाइम तो यूटिलाइज डेफिनेटली करना होगा। Right, right, right. And any before we finish today's conversation, so any tip, any suggestion that you would like to share, which I might have forgotten to ask you? कुछ चीजें जैसे प्रीलिम्स रिलेटेड एक दिमाग में हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कुछ स्कोर 100 के आसपास हो रहा है और फाइनली कट ऑफ के नजदीक तो आ गए, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है तो वो इतना तो इंश्योर कर लेता है कि वो कट ऑफ के आसपास तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। बैड लक इतना हो जाता है कि 3 या 4 मार्क्स से कभी प्रीलिम्स रह जाता है, तो वो कट ऑफ के आसपास तो डेफिनेटली सीरियस प्रिपरेशन के बाद तो वो आ ही जाता है। ये तो अगर एक बार अगर सही से रीडिंग हुई है और रिवीजन भी सही से है तो डेफिनेटली कट ऑफ के आसपास तो आ ही जाता है। तो एक दिमाग में वो चीजें होती है कि अगर 100 मार्क्स के आसपास अगर वो स्कोर इजिली कर लेता है तो अगर उसको फर्दर इंक्रीज करना है 115 120 मार्क्स के एक एक्स्ट्रा एज लेना है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए डेफिनेटली मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं 4 पिलर्स पे फर्दर फिर फोकस करता था, क्योंकि मैं भी पहले अटेम्प्ट कम करता था। जब मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करता था अराउंड 80 to 90 क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि सिविल सर्विसेज के लिए तो वो ओके है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स निकालना है देन अटेम्प्ट शुड बी एट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में 100 बेस्ट अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए स्पेशली स्मार्ट गेस्ट वर्क का काफी रोल होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही एलेबोरेट कर देता हूँ। देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हिच ऑफ दिस लेक्स आर आर्टिफिशियल। सम ऑप्शंस वेर लाइक कोलेरू लेक, चिलिका लेक, एंड वन ऑप्शन वाज कोडाई कनल। सो कोडाई कनल में कनल वर्ड कैनाल से आया, दैट इज आर्टिफिशियल, सो डेफिनेटली कोडाई कनल विल बी आर्टिफिशियल। अब ये चीज नहीं भी पता है लेकिन स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ कुछ सवाल होते ही हैं, लगभग मेरा मानना है कि 10 से 15 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो शायद आपको नहीं पता हो लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो कि किस स्टेट में है, एक बेयर मिनिमम आइडिया हो, उस आइडिया के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। और तो अगर वो 10 से 15 भी नहीं, वो 5 भी सवाल ऐसे हो गए तो 5 सवाल में भी एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो एज वहां पे लिया ही जा सकता है।
और उसके अलावा हर किसी को पता होता है कि उसका वीक एरिया क्या है। जैसे मेरे को पता था कि मेरा थोड़ा कल्चर मेरा वीक एरिया है, जहाँ पे मैंने बहुत कम मेहनत की हुई। तो डेफिनेटली वहाँ पे उसको रिवीजन का जितना तक पॉसिबल है, अब ऐसा भी नहीं है कि अब कल्चर ही पढ़ते रहना है, लेकिन हाँ, वीक एरिया हर किसी को पता होता है कि अब डेफिनेटली हर किसी का ज्योग्राफी में हो, किसी का इकोनॉमिक्स में हो, तो उस वीक एरिया पे भी फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट उतना तो हो जाना चाहिए जहाँ पे यूपीएससी जिस एरिया में सवाल पूछता ही पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एटलस में जैसे मैंने बताया कि रिवर सिस्टम, माउंटेन सिस्टम पे सवाल पूछा ही जाएगा, तो ज्योग्राफी वीक है तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन जो जिस एरिया में सवाल आना ही है तो एटलीस्ट उतना तो इंश्योर कर लेना है कि वो सवाल फिर गलत ना हो। तो डेफिनेटली यही है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है, थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क पे फोकस करना है, और जो वीक एरिया है उस पर टाइम डेडिकेट करना है, और जो कॉमन एरियाज है जो मैंने बताया हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली वहां पे तो फोकस करने की जरूरत तो है ही। So it was very nice and very enriching conversation, Anshuman, and I hope to continue this conversation on different themes of preparation. But for now, I'm ending this conversation, and a very heartfelt thank you to you for taking out time, especially under such difficult circumstances. But technology has enabled this interaction, and I hope to carry it forward. So thank you so much. Thank you so much for taking out time. And I'm sure that audience, those who are watching this video, will certainly find a lot of inspiration and a lot of insight also into the examination. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर। आई वुड आल्सो से थैंक्स कि मेरे को भी एक मौका मिला कि स्टूडेंट्स को जो भी अपनी स्ट्रेटजी या जो भी कुछ मैं बता सकूं वो बताने का मौका मिला, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट आल्सो। You are welcome. Thank you.